So now check, in fact, जो आपका EERD थी, remember in EERD we had many entity classes, super type, subtype, weak entity class. Every type of entity classes and attributes were in the EERD, and we also call it conceptual data model. Getting me or not? यानी हमारे पास Yes, EERD में एंटिटी क्लासेस, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप होते थे, यही था। yes, sir. अब एक बात याद रखना, वी ऑलवेज कन्वर्ट दैट EERD और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल इनटू अनदर मॉडल दैट इज नोन एज लॉजिकल डेटा मॉडल। यू विल हैव टू स्टडी दैट, जो मैंने आपको भेजा था उसको आप देखेंगे, मैं आपसे बात करूँगा कैसे करना है, लेकिन समझ लीजिए पहले यहाँ से। लॉजिकल डेटा मॉडल इज समथिंग दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ DBMS, in Access, in Oracle, in anything. That means if I have drawn some bubbles, some rectangles, some diamonds, those will not be much helpful to me. I must have some tables, some relations, right? So for that, what we do, we convert that EERD into logical data model. And in logical data model, in our course, we always draw the tables. तो एक बात को समझ लें कि जो हमारी EERD होगी उसको टेबल्स में बनना है, उसको टेबल्स में आना है, और वो हमें बनानी पड़ेगी। तो हम उसको देख लेते हैं। और इसके लिए हमने 4 स्टेप्स हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट एंटिटी क्लासेस। पर्पस क्या है? सबसे पहले आप अपनी जितनी एंटिटी क्लासेस हैं, फर्स्ट करो एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक कोर्स है, वी कन्वर्ट एवरी एंटिटी क्लास इनटू वन टेबल। सो if I have 4 entity classes, there would be 4 tables. If I have 8 entity classes, there would be 8 tables. If I have 1 super type and 2 subtypes, then there will be 3 tables. So each and every entity class becomes a table or a relation. Getting me or not? Yes, sir. And now, if I look at two tables, I cannot tell कि इनके बीच में relationship क्या है, how these are related. For example, one student can take many courses, but after performing this first step, कि पहला step करने के बाद, I can never tell which student is taking which course and which course is being taken by which student. So when we are done with making the tables, we go to the second step and we represent the relationships, उनके बीच में ताल्लुक क्या था, और उसके लिए हम लोग फॉरेन कीज यूज करते हैं। ये आज आप लोग देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे, वरना मैं फिर भी ये पढ़ा दूंगा दोबारा भी। ये रोजों में हुआ है जो हमने पढ़ा है, लेकिन देख लीजिए। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। Look, whenever we design, there is a chance that there can be some error in the design, some misunderstanding in the design, due to which what happens when we try to insert the data, the database never allow us to insert data. We try to modify, we face trouble. We try to delete, we again face trouble. So now this is the process, Yes, sir. normalization. Normalization is the most important topic of database, with the help of which we can remove those errors, we can remove those anomalies. So now let's start. अभी कोई आ नहीं रहा, मैं इंतजार कर रहा था कोई आ जाए तो मैं शुरू करूं, लेकिन अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो in fact, I told you, whenever we make a table, sometime it happens that we have some errors, some anomalies. What is an anomaly? Anomaly is an error or inconsistency that arises when we try to insert data, we try to modify data, we try to delete data. We cannot do that due to that anomaly, due to that error. So it is just because of the bad design. I could not design well. I could not design the ERD in a better manner. Then redundancy. So now say this is one table. Now everybody of you can easily tell me, sir, this is wrong. I know this is wrong. The reg number, name, and class must be in one entity class. It must be a separate table, and course code, course title, credit hours, and grades must be in another table. Yes or no? Yes, sir. तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बड़े क्लियरली पता है कि सर मेड टू टेबल्स और टू एंटिटी क्लासेस, वन फॉर द रेज नंबर एंड name and class, and other for the course related attributes. But now this is the mistake, bad design. I made only one entity class, and when I made it
a table, it became one table. Now check. When I start inserting data in it, I know that one reg number is reg number 1, Abdullah, BSCS 19. Course code, that course he is taking is 242, IDS 4 and A, grade is A. But remember, Abdullah is not taking only one course. Abdullah is taking many courses. So again, there would be one, look, one, Abdullah, BSCS, 244 and Java, and his grade is B plus in it. Then 2, Amir taking IDS, and 2, Amir again taking Java. Somebody 3, Babar, and taking IDS. Now my question is there any issue in this table? Yes, sir. There is. What is the issue then? Sir, there is repetition, sir. One thing is repetition, and repetition of what? Sir, the primary key. Excellent. The first thing is name is duplicate, class is duplicate, courses are but the main thing is primary key cannot have a duplicate value. This is the problem in fact. So if I try to insert data, for example, let me show you. In fact, here, what I do, the solution of this would be something of this kind of table. But if I do not make this table, just check here. I must not have this 1 and 1 because this is the only primary key. So you ask me, sir, should we go back? We must design the ERD again. We must draw the ERD again. I say never do that. We will do it in normalization. Normalization will help us to solve the issue. तो अब ये सुन लेते हैं इसको उर्दू में भी सुन लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट करूँ, ये टेबल गलत डिजाइन हुआ है, अगर मैं इसके अंदर डेटा डालता हूँ तो 1 अब्दुल्ला BSCS 18 242 IDS ले रहा है, लेकिन यही अब्दुल्ला जावा भी ले रहा है, तो ये 1 और 1 जो है ये आपके पास प्राइमरी की डुप्लीकेशन है, ये गलत डिजाइन हो गया है, और यहाँ पे रिडंडेंसी भी आ रही है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, आमिर आमिर, जावा जावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये डिजाइन गलत है। अब हमने, आपने मुझसे कहा वापस चले, मैंने कहा नहीं यार नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, और उसमें कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको बाद में रूल्स के तहत बताऊंगा। लेकिन हमने क्या किया, मैंने कहा काम करो यार, कोई से 2 एट्रीब्यूट्स फिलहाल मिला लो और उनको मिलाने से तुम्हें एक ही रिकॉर्ड मिले। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं कहूं कि 1 का ग्रेड बताओ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1 का ए भी है, 1 का बी प्लस बी है, यस और नो? Yes, sir. सॉरी। तो अब देखो क्या होता है, अब I ask you combine 2 attributes, composite key बनाते हैं, तो you take reg number and name, 1 and Abdullah. Now can you tell me the grade? If I Sir, give you values 1 and Abdullah, can you tell me his grade? sir, no, because अभी भी वो दो हैं. Still we cannot identify which grade I am talking about. Okay, I take reg number 1 and I take class BSCS 18. Can you give me the grade? No, sir. अभी भी नहीं आ रहा सर, 1 और BS 18 के 2 ग्रेड्स हैं, नहीं समझ में आ रहा हमें। Then I give you 1 and 242. Can you give me the grade? Yes, sir. Yes, sir. Now we can Yes, sir. give you the grade 1 and 242A, 1 and 244B plus, 2 and 244A. तो देखो चेक करो, when we consider two attributes, composite primary key, then we can identify the other attributes, unique record. Now check. So I made this table, reg number and course code. अभी आपको नहीं पता है हमने क्या किया, लेकिन ये फिलहाल अभी जो आपको मैं करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये देखिए, we have reg number and course code now. That means whenever I will have to search anything, if in the last case I ask you tell me the course title of 1, you were not able to give me the course title of 1. Look, 1 has the IDS and same 1 has the Java. तो आप मुझे नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब अगर मैं कहूँ 1 और 242 का टाइटल बताओ सर, IDS है, 3 और 242 का सर IDS है, तो नोट करो इस कॉम्पोजिट की को बना के हमने ये काम तो चला लिया, तुक्का हमारा चल गया कि वी कैन आइडेंटिफाई अ यूनिक entity class instance, a unique instance
with the help of these two attributes? Yes or no? Yes, sir. Now check. Yes, sir. Now check. If I try to insert data in it, how I face problem? चेक करना बेटा, जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा मुझे इश्यू क्या आएगा. देखो, एक मिनट रुक जाओ, इसको ले, जो बच्चा जितना पढ़ सकता है उसको आने दो. नाउ चेक. I told you anomaly is some error, is some inconsistency, is some problem that we face when we try to insert data, modify or delete. So let's check insertion anomaly. When we try to insert, क्या error आता है, क्या issue आता है, हम उसको देखना शुरू करते हैं. ठीक है. चेक करना सारे बच्चे अब जरा. सॉरी, ये देखो बेटा. सो नाउ इफ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट, से आप जब आए थे, बिल्कुल नए आए थे, you were in the first semester, it was the first week, and you were not informed about the courses you are taking. So uh, if somebody would have asked you कि जनाब ये नईम हैं आप, और नईम ये बताइए कि आपके पास कौन से कोर्सेज हैं, तो नईम कहता सर मेरे पास तो कोई कोर्स नहीं है, मुझे अभी नहीं पता. तो चेक, वो जो भी वहां पे सर बैठे होते वो उसका डेटा इंसर्ट ना कर पाते. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू इंसर्ट नेम्स डेटा while he did not have any course registered in his name? सर क्योंकि कोर्स कोड भी एक प्राइमरी की है. Excellent. Now check everybody. As now this is not the only key, there is the reg number. It is a composite key. Two keys combined make a primary key. So now if this cannot be null, this also cannot be null. We must have both parts, 4 and some course code for this particular record. तो मेरे पास क्योंकि कोड रेज नंबर है लेकिन कोर्स कोड नहीं है, तो मैं इस बच्चे का रिकॉर्ड कभी एंटर नहीं कर पाऊंगा. गेटिंग मी और नॉट? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुक, लाउंज साफ है, मैं वहां बैठ जाता हूँ, यहां से करवा लो सफाई. एक सेकंड बेटा. अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपसे दूसरी तरफ से बात करूं, मैं आपसे कहूं जी कि हमारे पास कोर्स है, और कोर्स में मैं आपसे ये कहूं कि यार ये कोर्स नया आ रहा है हमारे पास, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे? लड़का कोई नहीं है अभी इसमें, कोई लड़का नहीं है. आपने कहा सर कौन कौन ले रहा है, मैंने कहा कोई नहीं ले रहा, नोबडी इज टेकिंग दैट कोर्स, बट आई वांट टू ऐड इट. यस और नो? Yes, sir. तो अब चेक करो मेरा बेटा. अब मैं इसको उर्दू में समझाऊं. मैंने पहले एक स्टूडेंट ऐड करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कोर्स कोड नहीं था मैं नहीं कर पाया. फिर मैंने एक कोर्स ऐड करने की कोशिश की कि अगले सेमेस्टर से ऑफर करेंगे, ऐड कर दें जी. हम नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके लिए कोई रेज नंबर, कोई लड़का नहीं है. सो ऐसी इनॉमली जो हमें डेटा इंसर्ट ना करने दे इज नोन एज इंसर्शन इनॉमली. Insertion anomaly. वेरी गुड, शाबाश. और बेटा अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, यू मे आस्क मी, राइट? पक्की बात है, सबको समझ आ रहा है? Yes, I got जी. it. Yes, sir. हाँ, मैं इसीलिए इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर रोजों में नहीं भी पढ़ सके, थोड़ा सा वो था भी आपकी डिस्टर्ब थी रूटीन, तो अब पढ़ो. अब देखो बेटा, दूसरी है मॉडिफिकेशन इनॉमली. दिस इज द इनॉमली that arises, that appears when we try to modify data. When we try to modify data, देखिए अब जरा गौर से देखिएगा. नाउ here I have one, और ये वही टेबल है, this is the same table, one Abdullah, BS, everything is same. So now if here I have Amir, and Amir says please write down my name as Amir Saeed, there is a problem. If Amir has taken 12 courses, look, you all are in semester 4, right? So almost you have taken 18 credit hours, 6 threes are, हाँ, right. तो आपके 18 courses आपके बने हुए हैं. So Amir may have 18 courses, 24 courses, 30 courses. So his name will appear in the same table to Amir with introduction to programming, to Amir with object-oriented programming, to Amir with database. So his name with reg number 2 would be at more than one places, many places. So when you try to change his name from Amir to Amir Saeed,
The computer has to do this for multiple times. Yes or no? Yes, sir. मैं उर्दू में बता देता हूँ। देखो ये टू और आमिर है, और आमिर कहता है मेरा नाम आमिर सईद लिखिए, और आमिर सईद ने 15 कोर्सेज पढ़े हुए हैं। अब कंप्यूटर को 15 दफा जा जाकर आमिर सईद करना पड़ेगा। तो ये कहलाती है मॉडिफिकेशन एनॉमली। हमें एक ओवरहेड, रुक तो नहीं रहे, अब हम इंसर्शन में हम रुक गए थे। Here we are not stopped by the system, but still it has to perform some extra operation. इसको कुछ ज्यादा काम करना पड़ रहा है। Similarly, if I go to the course code and you say that sir what is IDS, मैंने कहा ओहो हर बच्चा कंफ्यूज होता है, let's make this IDS as introduction to database system, हम इसको ये लिख लेते हैं। But when I try, there were hundreds of students who were taking IDS, so I'll have to make this change, IDS for Abdullah, IDS for Amir, IDS, so I'll have to make this IDS introduction to database at so many places, right? तो ये कहलाती है मॉडिफिकेशन एनॉमली। गेटिंग मी और नॉट? जी सर। अब इसका मतलब Yes, sir. उर्दू में समझ लो कि यहां से तो नामों में नजर आ गया था। अब अगर यहां से मैं कह रहा हूं कि आईडीएस को इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम करना है, तो शायद एक सेमेस्टर में इस वक्त आप जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, आप 125 से ज्यादा हैं, और आइए ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं ये भी इतने ही हैं। तो फर्ज करो 250 बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे के नाम के आगे ये है, तो हमें जहां जहां आईडीएस है हर जगह पर इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम करना पड़ेगा। दिस इज मॉडिफिकेशन एनॉमली। नाउ यू गॉट मी और नॉट? आ गया सर। चलो इंसर्शन भी हो गया बेटा, मॉडिफिकेशन भी हो गया। अब जरा डिलीशन देखो। देखो here we have the same data Abdullah IDS. Now Abdullah has passed out, or he just want to leave the university. So I ask you, okay, delete the record of Abdullah. So if you delete Abdullah like this, you also lose the information that you are offering a course IDS with credit R4. बहुत ख्याल रखिएगा, you do not have two tables. You have only one table that is containing the data about the student and about the course. So if you delete a student and this is the same row, so you will have to delete the whole row. And when you delete the row, then that means you are going to lose the course code, course title and credit hours. इसको उर्दू में समझते हैं। अगर मैं एक लड़का अब्दुल्ला है और ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चला गया या जा रहा है, मैंने कहा अब्दुल्ला का रिकॉर्ड डिलीट करें, आपने डिलीट तो किया, लेकिन देखिए अगर आप ये 3 कॉलम्स डिलीट करेंगे तो ये प्राइमरी की नल हो गई, खाली हो गई। आपको रो डिलीट करनी होती है पूरी। जो ही आपने रो डिलीट की तो आपके पास से कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी गई। और मैं दोहरा दूं कि कोर्सेज का टेबल अलग नहीं है, ये हमारा बैड डिजाइन था, हमने दोनों को जोड़ के बना लिया था। तो आपको यहाँ पे डिलीशन की नॉर्मली समझ में आई। वी वांट टू डिलीट समथिंग बट समथिंग एक्स्ट्रा इज बीइंग डिलीटेड दैट वी डू Yes, नॉट sir. वांट टू डिलीट, तो वो भी डिलीट होना शुरू हो गया। फिर एक दिन आपने कहा कि सर हम लोग जो है जावा को डिलीट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा मिटा दीजिए। नाउ व्हेन यू ट्राई टू डिलीट जावा, लुक इसको जब डिलीट किया, यू नीड टू डिलीट कोर्स कोड, आपको डिलीट करना पड़ा। और जो ही आपने डिलीट किया आपको रो डिलीट करनी पड़ेगी, प्राइमरी की खाली नहीं रह सकती। व्हेन यू डिलीटेड दिस 244, यू हैड टू डिलीट दिस, you only wanted to delete the course, but now Abdullah's record has also been deleted. Got me or not? Deletion समझ में आई? यस एक सर। दफा उर्दू में भी देख लो कि अब मैंने सिर्फ अब्दुल्ला यहाँ से, सॉरी कोर्स को, मैंने कोर्स को डिलीट करना था, लेकिन जब मेरे से ये वाला कोर्स 244 भी डिलीट हुआ तो प्राइमरी की का हिस्सा डिलीट हो गया, मुझे पूरी रो डिलीट करनी पड़ी। तो कोर्स डिलीट करता हूं तो स्टूडेंट डिलीट हो जाता है, और स्टूडेंट डिलीट करता हूं तो कोर्स। दिस इज डिलीशन एनॉमली। तीनों एनॉमलीज नजर आ गई। पहले बताओ यहां तक जहनों में बात बनी? दोबारा अब तो टेम्पो बन रहा है आप लोगों का? यस सर। बस शाबाश। Yes, sir. अब आप लोगों ने पीछे नहीं हटना है। रमजान में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, अब उसको दूर करो, अपने बाकी दोस्तों को भी बोलो। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अब सोचो, दिस इज द टेबल विद द इनॉमलीज, इसके अंदर इनॉमलीज है। Now we will have to make this table one table or more tables, बाद में बात करते हैं, but one or more tables must be without anomalies, उनमें anomalies नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम normalization करते हैं। Now check, normalization is a step by step process in which we convert a complex data structure, ये लफ्ज मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। Complex data structure is table with anomalies
into a simple data structure, the table, there is well structured relation or relation without anomaly. क्या कह रहा है? नॉर्मलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसे टेबल को जिसमें इनॉमलीज हो कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे टेबल या टेबल्स में जिनके अंदर इनॉमलीज ना हो. नॉर्मलाइजेशन नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. नंबर 2 हर स्टेप में वो कुछ कोशिश कर रहा होता है कि मैं कोई चीज को ठीक करूं. पहले बताओ ये हल्की सी डेफिनेशन समझ में आती है कि नहीं? यस सर, आगे। आ गई. चलो अब इसको जरा दिखाते हैं, बताते हैं. ये वो लोग तो नहीं बोल रहे जिन्होंने रमजान में भी इसको दोहरा लिया था, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि दोहराने का फायदा ये हो कि हर बच्चा इसको अब दोहरा ले. चलो अब देखो, नॉर्मलाइजेशन में वी हैव द नॉर्मल फॉर्म एनएफ. व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म? लुक, आई हैव अ टेबल, I apply some rules of normalization on it, and my table changes its state, its form, its face. So the new shape, the new form, the new state is known as first normal form. When I apply the rule for first normal form, my table is converted into 1NF. When I apply the rule for second normal form, 2NF. Third normal form rules, then 3NF. होता क्या है, हम टेबल को लेते हैं, अगर उसमें इनॉमलीज हों तो हम उसमें नॉर्मल, अभी पढ़ा नहीं है हमने लेकिन पढ़ेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन का पहला रूल अप्लाई करते हैं. जो ही वो हम अप्लाई करते हैं जो टेबल की नई शक्ल बनती है उसे कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ये उसकी स्टेट है, उसकी फॉर्म है, उसकी शक्ल है. फिर भी अगर उसमें इनॉमलीज हैं हम उससे दूसरा रूल अप्लाई कर देते हैं. फिर बस 2NF आ जाता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. फिर भी अगर इशू है रूल 3 अप्लाई करते हैं, 3NF आ जाता है. इंटरव्यूज में आपको फंसाया जाता है कि 3NF के बाद क्या आता है, तो लॉजिकल सी बात है 4NF, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है. 3NF जो है ये जो हम रूल अप्लाई करते हैं, अगर फिर भी इनॉमलीज हों तो हम बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म है BCNF, ये रूल अप्लाई करेंगे और टेबल की फॉर्म क्या बन जाएगी, शक्ल क्या बन जाएगी, बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म. इस लिहाज यकीन ये इसको समझ के रखिएगा. 3NF के बाद BCNF आती है और BCNF के ऊपर भी अगर आपके पास एनॉमलीज हो एंड यू अप्लाई द रूल फॉर 4NF, देन यू गो इनटू 4NF, देन यू अप्लाई फॉर रूल फॉर 5NF, देन यू गो टू 5NF. नॉर्मली हम 3NF पे रुक जाते हैं. मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है कि जब हम टेबल्स को बहुत डिवाइड कर दें तो हमारी क्यूरीज मुश्किल होती है, लेकिन अभी सिर्फ ये देखिए, टेबल, we apply the rules, get the new form 1NF, then again anomaly in it, apply the rule, then second normal form, then anomaly, apply the rule third. So state or shape or form of a table after rules of normalization are applied on it is known as normal form. टेबल की वो शक्ल जिस पर जब रूल्स अप्लाई कर दिए जाएं तो वो नॉर्मल फॉर्म कहलाती है. तो अगर नॉर्मलाइजेशन का पहला रूल अप्लाई करेंगे तो 1NF कहलाएगी, दूसरा करेंगे तो 2NF. तो नाउ पहले बताओ यहां तक क्लियर है बेटा? नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ रही है? यस. राइट. अब देखो बेटा, ये मेरे पास एक टेबल और ये वही मैंने जान के रखा है अब्दुल्ला वाला, अगर नोट कर लो इसको, ये देख लो. अब ये क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. A relation is said to be in first normal form or 1NF if it has no repeating group in it. इसमें कोई repeating group नहीं होना चाहिए. अगर रिपीटिंग ग्रुप है तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं पहुंचा हुआ है, सिर्फ टेबल है. लेकिन अगर मैं इसमें से रिपीटिंग ग्रुप को निकाल दूं तो जो नई शक्ल मिलेगी वो 1NF होगी. अब पहली बात कि सर वो रिपीटिंग ग्रुप तो हमें याद ही नहीं कि वो क्या होता है. देखो मैंने आपसे कहा था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इफ वी हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड देयर आर मोर देन वन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देन दे फॉर्म अ रिपीटिंग ग्रुप. Sir, how we can find out a multi-valued attribute? Check. If I give you reg number 1, what is the name of reg number 1? Abdullah. Abdullah. What is the class of reg number 1? BSCS 18. What is the course code of reg number 1? 242. 242. ये देखो. दो हैं सर. राइट. इसका मतलब है फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ प्राइमरी की आई एम गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ कोर्स कोड. दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. यस और नो? Yes मल्टी sir. वैल्यूड यही था ना, प्राइमरी की एक वैल्यू दें तो वो एक एट्रीब्यूट ज्यादा वैल्यूज देना शुरू कर दे. तो नाउ इट इज गिविंग मी टू वैल्यूज. अगेन
course title is giving me 2 values, credit R is giving me 2 values. Yes or no? Yes, sir. So that means if I give you primary key, few attributes will not be able to be identified. उनको आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे. आप कहेंगे सर मुझसे नहीं मिल रहे, वहां पे 5 हैं, वहां पे 2 हैं, वहां पे 10 हैं. तो अब नोट कीजिए, ये है रिपीटिंग ग्रुप. दैट मीन्स द टेबल दैट आई हैव डिजाइन, it has issue, so I must apply the normalization to bring it into first normal form. Getting me or not? Yes, sir. Yes. उर्दू में बात करते हैं. मेरे पास टेबल में एरर्स आए और मैंने फौरन चेक किया. पहला शक, क्या शक होना चाहिए? पहला शक ये है रिपीटिंग ग्रुप नहीं हो. पहला रूल ये है. तो मैंने चेक किया 1 के लिए कितने नाम, एक क्लास, लेकिन यार यहाँ पे 2 आ रहे हैं. सर ये मल्टी वैल्यूड है, सर ये मल्टी. तो देखा तो इन तीनों का आपस में ताल्लुक भी है, एसोसिएशन. कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर्स, इन तीनों का है, ग्रेड का नहीं है अभी. मैंने कहा ठीक हो गया. नाउ चेक हाउ कैन वी रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप. ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, अब दोबारा दोहरा रहा हूँ. चेक, मैंने कहा था इन ऑर्डर टू रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप वी कंसिडर 2 एट्रीब्यूट्स. चेक करो. We will consider reg number and name. Can you give me the course code? 1 Abdullah No, का? sir. No. 1 BSCS 18 का? No, sir. 1242 का कोर्स टाइटल दे सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, इसका मतलब है जो पेयर बन रहा है वो रेज नंबर और कोर्स कोड का बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनॉमली रिपीटिंग ग्रुप की है, ट्राई टू फाइंड आउट the composite primary key. Those can be 2, those can be 3 keys that may make a primary key, a composite primary key. तो चेक करो मेरा बेटा. अब यहां पर जब आए तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप. ट्राई टू मेक अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप. ठीक है, आपने कोशिश करना है कि आप 2 या 3 एट्रीब्यूट्स को मिला लें, लेकिन ऐसे एट्रीब्यूट के जब उनको मिलाकर हम पूछें तो हमें हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू मिले. तो चेक, राइट नंबर एंड कोर्स कोड को हमने मिलाया. नाउ इफ आई आस्क यू 1 एंड 4, कोर्स टाइटल बता सकते हो, क्रेडिट आवर्स बता सकते हो? 1 2 Yes, 4 sir, 4 4. का कोर्स कोड और क्रेडिट आवर्स. Sir, 4. अब बड़ा आसान हो गया कि जनाब 244 का क्रेडिट आवर्स 3 है. ये 244 का पूछ रहा हूँ ना, 1 एंड 244. Yes, sir, 3. तो इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं और इसका B प्लस ग्रेड है. Yes, sir. समझ, ग्रुप हैज बीन रिमूव्ड. यस और नो? पहले तो ये बता दो. गुम हो गई जो वो थी ग्रुप की, अब हमारी वैल्यू 1 मिल रही है. यस और नो? Yes, sir. So we made the composite primary key, right? So we made the composite primary key to remove the repeating group. But now check, मैं वापस जा रहा हूँ 11वीं स्लाइड से उल्टा चल रहा हूँ. देखना, नोट डाउन. ये देखो, this is the same table. Yes or no? Reg number and course code are the primary. Yes or no? Yes, sir. Anomaly है कि नहीं है? Yes, sir, है. Sir, we have anomaly in this table, although it has a composite primary key and no repeating group, but it has the anomaly. It has the modification anomaly. The same table has a deletion anomaly, sir. Even after removing the repeating group, it has the anomaly. So check. Now, we will have to move to the second normal form, 2NF. अब पहले बात समझ लीजिए, क्योंकि ये हमने पहला स्टेप तो कर लिया. We brought it into a new shape. देखो, this was the old shape, old form table. When we made it a composite primary key, its shape changed. We have a composite primary key. So now this is the composite primary key. It is in 1NF, but still it has all 3 anomalies in it. So we will move towards second normal form. Our relation is set to be in 2NF. If it is in 1NF, देखो मैंने bold किया हुआ है. It must be the first condition that it must be 1NF first, and then you try for there is no partial functional dependency in it. There must not be any partial functional dependency in it. Now we do not know what is partial functional dependency, so let's check what is it. पहले तो ये मैं तुम्हें उर्दू में बता दूं. 1NF में ये था
लेकिन इसमें इनॉमलीज अभी भी हैं। अब्दुल्ला कहते मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला करें, कई दफा करना पड़ रहा है। जावा को हमने कुछ और लिखना है, जावा 1 करना है, या हमने विजुअल प्रोग्रामिंग 1 करना है, तो हमें कई जगह करना पड़ेगा। सर इनॉमलीज हैं, तो मैंने कहा फिर ऐसा करो 1NF में अगर ये है तो इसको अब 2NF में लेके जाओ और इसमें चेक करो कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, जरा पढ़ के देखो। पहली चीजें पढ़ाऊंगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फिर पार्शियल। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, से वी हैव अ रिलेशन, टेबल है, टेबल का नाम है आर और उसके एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई। सो वी हैव अ रिलेशन आर, attribute A is the primary key, then B, C, D, E. If A can determine the values of B, C, D, E, yani if this is the attribute, if I give you the value of this attribute A, you can tell me B, you can tell me C, you can tell me D and E, then this phenomena is known as functional dependency. अगर A, B, C, D, E की वैल्यू बताए तो इस फिनोमिना को, इस पूरे बात को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और वो जिनकी वैल्यू बता रहा है B, C, D एंड E आर सेट टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन A, यानी B को अपनी वैल्यू मालूम करने के लिए A की जरूरत है। C नीड्स A, D नीड्स A, E नीड्स A to tell its value, to get its value. So now check, we determine or we show this like this, A arrow B C D E। इसका मतलब क्या है जरा देखना कि अगर टेबल R है and A is the attribute that can identify B C D E, then we can show it A can give you B C D E। और इसको हम पढ़ते कैसे, A determines B C D E, और इसको हम कहते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी जो आपकी प्राइमरी की है उसको वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही है और तमाम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। जरा चेक करो, ये एग्जांपल है स्टूडेंट, द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज राइट नंबर, नेम, एड्रेस एंड क्लास। So now I want to know which attribute can give me the values of other. So reg number is that value. Reg number determines the name, address and class. So now this is again full functional dependency. उर्दू में देख लो, स्टूडेंट एक टेबल है, रेज नंबर एट्रीब्यूट है, नेम है, क्लास है, एड्रेस। क्या पता एक ही नाम के 3 बच्चे एक क्लास में हो, क्या पता 2 भाई जो हों वो एक ही स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, क्या पता कि एक ही क्लास में 40 लड़के पढ़ते हो, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन रेज नंबर ढूंढ सकता है, रेज नंबर हमें नाम भी दे सकता है, एड्रेस भी, क्लास भी। तो हम लिखेंगे रेज नंबर बता सकता है नाम, एड्रेस और क्लास। पहले बताओ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब जरा देखो पार्शियल इंपॉर्टेंट है, जैसे गौर से देखना कि इसको हमें रिमूव करना है। अब देखो इफ वी हैव अ रिलेशन आर, और देखो मैंने यहाँ पे पहली चालाकी की हुई है कि ए और सी को अंडरलाइन किया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं और तुम्हें याद रखना है, partial functional dependency only exists when there is a composite key. More than one attribute play the role of primary key. So if we have a relation R, A, B, C, D, E, and part of the composite primary key, what are the parts? A is one part and C is one part. Yes or no? Yes, यस sir. सर। इसको उर्दू में देखो, अगर हमारे पास एक रिलेशन हो आर जिसमें ए बी सी डी ई एट्रीब्यूट्स हो, ए और सी मिलकर कॉम्पोजिट बनाए, देन पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट की ए या सी, इन यानी दोनों में से कोई एक, डिटरमिन्स वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ए फर्ज करो बी की वैल्यू बता दे, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर कोई एक पार्ट से याद रखना पार्शियल, अगर एक पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट प्राइमरी की किसी नॉन की वैल्यू बताना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। इफ पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट प्राइमरी की सी इज डिटरमिनिंग डी एंड ई, this is not the full primary key, so we will say that this part is determining D and E. So here we have partial functional dependency. Getting me or not? Yes, sir. अब जरा देखो स्टूडेंट का टेबल है, रेज नंबर, नेम, क्लास, कोर्स कोड, टाइटल, क्रेडिट आवर्स एंड ग्रेड। चेक करना
अगर मैं तुम्हें रेज नंबर दूं तो मुझे, चलो वापस चलते हैं जरा सा यहाँ से। अगर मैं तुम्हें रेज नंबर दूं तो क्या तुम मुझे कोर्स टाइटल दे सकते हो? रेज नंबर 1 का टाइटल बताओ, कोर्स टाइटल। IDS सर। नहीं यार, नहीं दे सकते सर। आईडीएस भी और सर जावा भी है सर, हम नहीं दे सकते। 2 हैं, 5 हैं, 10 है सर, नहीं हो सकता। बट इफ आई आस्क यू टेल मी द नेम ऑफ रेज नंबर 1, कैन यू टेल मी द नेम? यस सर। कैन यू टेल मी द क्लास? यस सर। नाउ चेक, मेरे पास आई हैव a composite primary key, reg number and course code. Now part of the composite key, this part, reg number is telling me the name and class. So this part is giving me the values of attributes. So this is partial dependency. And this part, course code, is giving me these values. So again, this is partial dependency. Getting me or not? यस सर। तो अगर आपको, अब उर्दू में देख लो, अगर आपको ये 2 पार्ट्स बन गए, टुकड़े बन गए, अब अगर एक पार्ट किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू देने लग जाए तो हम कहते हैं ओहो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। नेम और क्लास इस वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है, और टाइटल और क्रेडिट इस वाले पार्ट पर डिपेंडेंट है। अच्छा जरा मुझे एक चीज का जवाब दो, इफ आई आस्क यू गिव मी द रिजल्ट ऑफ ग्रेड रेज नंबर 1, ग्रेड ऑफ रेज नंबर 1। तो 2 हैं। 2 हैं। एंड इफ आई आस्क यू गिव मी द Yes, रिजल्ट ऑफ, right, and if I ask you give me the course code of 2 sorry grade of 242? सर सिंगल है। नहीं सर 2 हैं नहीं अभी। है, नहीं है, 3 है बेटा। मैंने जान के टेबल बनाई हुई है ऐसे हैं ताकि मैं आपको, ठीक है देखो, यस ये सर। मैंने जान के बनाए हैं कि तुम कर। अब देखो उसका मतलब क्या हुआ यार, हाउ कैन आई फाइंड आउट द ग्रेड? यस सर। कैसे मिलेगा ग्रेड? हाँ जी, सर आइडिया नहीं। सर दोनों प्राइमरी कीज को यूज करते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस देखो सर। सर, आप हमें कह रहे हैं रेज नंबर 1, देखो मेरे सवाल को समझना, जरा उर्दू में पहले देख लेते हैं, बल्कि पहले इंग्लिश में देखो ताकि हमें, if I give you reg number 1 and ask you for the grade, you will always ask me, sir, reg number 1, which course? Because I have so many courses. Then I ask you reg number 1 and 244, and then you can give me the grade. Yes or no? यस सर। That means you need the full primary key. So this is full functional dependency. There is grade needs the full primary key, while the name and class need only this part, reg number, and course title and characters need only course code. उर्दू में सुन लो, अगर मैं रेज नंबर 1 बोलूं तो आप सवाल कुछ इस तरह करेंगे कि सर अगर 1 का आपको ग्रेड चाहिए तो सर आप 1 का कोर्स भी बताएं ना। जब मैं तुम्हें 1 के साथ कोर्स बताऊंगा तो ये ग्रेड पता चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ग्रेड फुल डिपेंडेंट है, जबकि नेम और क्लास रेज नंबर के पार्ट पे डिपेंडेंट है, और कोर्स टाइटल क्रेडिट कोर्स कोड के पार्ट पे डिपेंडेंट है। यस और नो? यस सर। अब ये देखो, ये वही है, मैं जान के लेके एक ही सीक्वेंस पे चल रहा हूँ। रेज नंबर, नेम, क्लास, कोड, टाइटल, क्रेडिट एंड ग्रेड। चेक, reg number determines name and class आधे, so that means this prime part of the primary key is determining these 2 attributes, so this is partial functional dependency. And the other part, that is course code, course code is determining course title, creditors, partial dependency. There are 2 partial functional dependencies. And reg number and course code, full primary key can only determine the grade, full functional dependency. देखो बेटा, जो एक पार्ट है रेज नंबर वो 2 को डिटरमिन कर रहा है पार्शियल, दूसरा पार्ट इन 2 को पार्शियल, और ग्रेड पूरी प्राइमरी की से डिटरमिन हो रहा है, तो फुल फंक्शनल। यस और नो? यस सर। मुझे लग रहा है थक गए हो या सो गए हो, अभी तो पौना नो घंटा सर। हुआ है बच्चों। नहीं सर, जाग रहे हैं। चलो शाबाश। अब देखना जरा इसका सोल्यूशन क्या है, सारे बच्चे जरा पहले समझो। जाग रहे हैं, चलो अच्छी बात है। बस बेटा इसलिए कि अब आप लोग जागे हो और मेहनत कर रहे हो, तो जो लोग आ रहे हैं सीरियस है ना, उनका मुझे ग्रेड्स टॉप पर चाहिए। अव्वल तो सबके टॉप पर चाहिए, लेकिन जो कम से कम नकल किए बिना तुमने पास होकर दिखाना है मुझे,
और वही मेरा प्राइड होगा कि हाँ यार इन बच्चों ने मेरे साथ मेहनत की है, नहीं मैं अकेला ही नहीं जागा हूँ। अभी भी मुझे पता है लड़के बहुत कम है और दुख की बात है, मतलब अब तो रोजों का भी बहाना, चलो रोजों में मैंने खुद आपको रिलैक्स किया था कि यार ये नहीं आए आप लोग एक दिन 2 दिन, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, लेकिन अब तकलीफ दे हो जाएगा अगर नहीं आए तो। एनी हाउ आप लोग हो। अब देखो नाउ व्हाट वी डू, व्हाट इज द सोल्यूशन सर? You make one table for this partial dependency. Sir, how? Make a table student, check. This is the partial dependency, partial and full. ये मैंने दोबारा लिखा है। अब जरा यहाँ देखो, बल्कि solution देख लो पहले यहाँ से। So now we will mention all the full and partial dependency and make one table for each dependency. एक मैंने ये लिखी, reg number, name and class partial, course code, title and credit hours partial, reg number, course code, grade, full dependency. So now the solution is we will make one table for this and we will make this reg number primary key. We will make another table for this and we will make course code the primary key. We will make the third table and we will make reg number and course code as the primary key. Now check. One table is the student. Reg number became the primary key. Here we have the name and the class. So now this is one table. If I ask you, Amir wants his name to be written as Amir Saeed, for how many times I need to make that change? Only one time, sir. Only one time. सर आसानी हो गई है। देखो उर्दू में देखो, अब जब टेबल ये बनकर आया और आमिर ने कहा यार मेरा नाम चेंज करें, मेरा नाम आमिर सईद है या मोहम्मद आमिर है, तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक दफा चेंज किया। पहले क्या हो रहा था बच्चों पुरानी स्लाइड, इसके पिछली स्लाइड्स में? सर हमें कोई 18 दफा चेंज करना पड़ा। जितने हमारे पास सर कोर्सेज थे हमें उतनी दफा जा उसको कंप्यूटर को चेंज करना पड़ा। नाउ माय क्वेश्चन यस सर। is another one. That is, if there is a new student, Zain, reg number 4 and class BSCS F20, can I insert his data? यस सर ऑफ कोर्स। कैसे? कोई इश्यू नहीं आएगा सर हम यस सर। हाँ, right. Now there is no issue in it because we do not have course code or any other information in this table. So जब आप नए नए आए, Zain नया आया 19 में, तो मैं लिखा 4 Zain BSSC F19, तो हमें आसानी हो गई। पहले बताओ अब बात समझ में आई? यहाँ से खत्म हुआ मसला कि नहीं? इनॉर्मली गुम हुई कि नहीं? यस सर हो गई। अब अगर मैं डिलीट करूं, मैं यहाँ से कहता हूँ जनाब आमिर को डिलीट कर दें, सो विल इट हर्ट एनीबडी एल्स? नो। इस टेबल में कुछ और है जो कि नहीं डिलीट होना चाहिए? नहीं सर, ये रेज नंबर भी आमिर का है, नाम भी आमिर का है, क्लास भी उसके, डिलीट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो चेक करो, जो अभी आपने एनॉमलीज पढ़ी थी वो यहीं पे 2 में ही गुम हो गई, 2NF में गुम हो गई, 3NF में भी हम गए ही नहीं है। अब जरा चेक करो। नाउ वी मेक अनदर टेबल, कोर्स कोड वाली डिपेंडेंसी को चेक किया, course code became the primary key, the other 2 attributes became the non-key attributes, and now this course code is determining all other values, CS242, IDS, and credit R4. If I want to insert a new course, CS5255, operating system for credit R, can I insert? अगर एक नया कोर्स लेकर आऊं 255 ऑपरेटिंग सिस्टम क्रेडिट R4, हो जाएगा इंसर्ट? यस सर। यस सर हो जाएगा। एक्सीलेंट मेरा बेटा। देखो इसका मतलब है इनॉर्मली गुम हुई है। और अगर मैं IDS को इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना चाहूं तो कितनी दफा करना पड़ेगा इस टेबल में? एक बार सर। एक दफा। क्योंकि सर प्राइमरी की 242 एक ही दफा आएगी, IDS एक ही दफा आएगा, तो सर एक ही दफा चेंज करना होगा, पुरानी वाली सब एनॉमलीज गुम हो गई। अब थर्ड डिपेंडेंसी देखो, in which we had the composite key, the full key that was determining the grades. So I made another table, reg number, course code, and grade. So now check 1 CS242 and A, 1 CS244 B plus. बेटा जब हमारे पास एक composite key बनती है, I told you we consider the pair 1242 1244, so it is not repetition. Getting me or not? ये रिपीट Yes, नहीं हो sir. रहा मेरा बच्चा? यस सर। बात समझ में आती है? चलो शाबाश। अब एक बात को गौर करो,
कि यहाँ पे 1242 1244 को अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं, दोनों मिलकर अलग वैल्यूज। तो नोट करो, ये हमारा सोल्यूशन बना। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, मैं जान के नहीं आपको बता रहा। देखो ये देखो, ये सोल्यूशन बना, स्टूडेंट एक अलग बना, कोर्स का एक अलग बना, और बीच में एक और बन गया जिसमें इसकी प्राइमरी की, इसकी प्राइमरी की, और ग्रेड आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये देखो, स्टूडेंट, दरमियान वाला टेबल रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन वट एवर, और ये कोर्स। तो देखो ये आपकी डेटाबेस अब खूबसूरत होनी, एरर फ्री होनी शुरू हो गई। बताओ यहां तक समझ में आता है? यस यस सर। सर। अच्छा, अब सुनो, मैं क्यों रुक रहा हूँ, इसकी एक वजह है सिर्फ बेटा, सिर्फ इसलिए कि जो लड़के अभी भी सीरियस नहीं हुए, उन्हें प्लीज आज ये बताओ कि ये वो टॉपिक है जो सबसे अहम है। जो भी शख्स, मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ, जिस शख्स को डेटाबेस का कुछ नहीं आता, वो इंटरव्यू में फिर भी आपसे पूछ लेता है, अच्छा यार मुझे बताओ ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, अच्छा बताओ इनॉमली क्या होता है, अच्छा ये बताओ कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कैसे करते हैं। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप बाकी दोस्तों को बताएं कि सर ने हमें 1 घंटा पढ़ाया था, बल्कि 50 मिनट सिर्फ, 35 पे शुरू हुए थे, अभी सिर्फ 25 हुआ, 24। तो उन्हें कहना सिर्फ 1 घंटे से भी कुछ कम पढ़ाया है, इसलिए कि आप वापस आओ। और अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक मजे की कहानी बताऊं। इसको अभी मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं अभी इसको रोक रहा हूँ, सिर्फ इसको एक हिंट देता हूँ, पढ़ाऊंगा कल इसको। पता है क्या, जो आपने अभी रमजान में चीजें मिस कर दी है ना, वो यही था कि अगर बाइनरी हो और मैनी टू मैनी हो, तो उस सूरत में फॉरेन की नहीं होती, बल्कि दोनों की कीज आती हैं। आज आपने वो वाला अपना चैप्टर, अपना वो वाला लेक्चर रिवाइज करना है, और मुझे परसों बताना है कि समझ में आया कि नहीं, वरना मैं वो भी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना सा करना है कि आप 1NF करें, 2NF करें, और इनॉमलीज करें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके सर। यस सर। ठीक हो गया। और अभी तुम जरा, मैं इस वाली एक स्लाइड की कॉपी करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड, और मैं इसको नीचे कहीं लेके आना चाहता हूँ। एक सेकंड। ये अभी आप, अगर अगर आप लोग इस अपने जो आपका ये टाइम है ना, लैब वाला, लैब उनको कहना कि अब सर कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में जरूर होगी, मैंने रिपोर्ट्स करवानी है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, और ये देखो मैं यहाँ से सब मिटा देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ। और ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है। मैं, अभी आप हंस पड़ोगे कि सर ने हमें, हमारे सामने ही हमें ऐसा काम दिया जो हमें आता है। कस्टमर आईडी, मैं इसको जरा शरारत कर लेता हूँ ताकि तुम्हें भी ये और आसान लगे। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक हो गया। और यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें और फेमिलियर लगे। क्वांटिटी, बैठ के सोचना इसको, ठीक है? और अब मैं चाहता हूं कि तुम इसका मेक अ टेबल, एक सेकेंड, है तो ये टेबल ही शॉर्ट एंड नोटेशन में है। मेक अ टेबल and insert data in it and try to find out the anomalies, और फिर normalize up to 2NF। इसको आपने करना है। और मैं आपसे अगर वैसे पूछूं कि यार कितना मुश्किल है, जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं, कितना मुश्किल है ये?
ये वही है, कस्टमर आईडी से कोई क्या नहीं पता मुझको। चल रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको आपने करना है, कस्टमर और यहाँ नेम तक और मैं, कस्टमर। हाँ कस्टमर नेम और एड्रेस पार्शियल डिपेंडेंट है। फिर आपके पास जो वो, सॉरी मैंने पी नेम को, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको सिंपल रखूं, इसको भी फिलहाल सिंपल, आपने सोचना है। चलो ये अब आपने काम करना है। और दूसरा ये कि जो आपको अभी क्या लिंक दोबारा भेजूं इनॉमलीज वाले का, उसका ये तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपका। तो जो पहले वाला था उसका लिंक आपको भेजा जाए लॉजिकल डेटा मॉडल वाले का, ताकि आप उसको देख लो अभी बैठ के। आप 12-14 ओके लोगों सर। में से कितनों ने देखा हुआ है ये बता दो। सर देखा हुआ सर मैंने देखा हुआ। इसलिए तुम लोग बोल रहे हो ना बढ़ बढ़ के, बाकी बच्चे भी मुझे चाहिए ना बेटा। चलो आज सिर्फ 9 लोग हैं। अच्छा जैन बेटा, आपने एक काम करना है, आपने अभी फिलहाल इनकी अटेंडेंस ले लो मेरा बच्चा, क्योंकि ना 16 लोग हैं। अच्छा सॉरी, ठीक है 16 है। बेटा क्लास को बताओ कि सर इमरान वही है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ रोजों में इसलिए आसानी दी थी कि चलो सभी के डिस्टर्ब वो थे, मैं बैठा भी रहा। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर। ओ सॉरी,